دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں ہے شراب رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جانب اسلامیہ ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں نے مل کر اپنے گاؤں میں مرکزی مسجد میں تاجدار کربلا کے نام سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ ہم لوگوں نے پروگرام رکھا ہے اور لگاتار کئی سال سے ہم لوگ ذکر شہادت مولا حسین سن رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ رب کی توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم لوگ امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ولادت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میں سناؤں گا، اور مولا علی کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے، وہ بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ جانب اسلامیہ، یہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کے اندر جب آپ کی امی جان خانہ کعبہ کی طواف کر رہی تھی تو اسی درمیان آپ کو بچے کی جو ولادت کے سمے درد ہوتا ہے وہ درد شروع ہوا، خانہ کعبہ شک ہوا، آپ اس کے اندر گئیں، وہیں پر مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی۔ جب مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے تو بہت ہی کمزور اور لاغر پیدا ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں بند تھیں۔ ابو طالب اپنے گود میں بچے کو لیتے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنی کہ ابو طالب کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور جو بچہ جسمانی طور پر کافی کمزور ہے اور اسی کی آنکھیں بند ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ابو طالب کہتے ہیں کہ بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، بہت کمزور ہے، اس کی آنکھیں بند ہے، پتہ نہیں کہ بچہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لاؤ اس بچے کو میں اپنے گود میں لیتا ہوں۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا علی شیر خدا کو اپنے گود میں لیتے ہیں، مولا علی شیر خدا نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی نے لوگوں کو بتایا، لوگوں میری ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، لیکن میں پہلے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا اس نبی محترم کا چہرہ دیکھ نہ لوں گا تب تک خانہ کعبہ کا دیدار نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا چچا آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ بولے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ بہت ہی اچھا اور پیارا نام ہے۔ علی کا مطلب یہ ہوتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے بہت ہی بلندی والا، بہت ہی اعلیٰ مقام والا، جس کا کوئی ابتدا بھی نہ ہو، جس کا کوئی انتہا بھی نہ ہو۔ آپ نے چچی سے کہا چچی آپ نے اپنے بچے کا نام کیا رکھنے کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کی امی جان فرماتی ہے کہ میں نے سوچا ہے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھوں گا۔ بولے سبحان اللہ۔ حیدر کا معنی یہ ہوتا ہے شیر ببر، شیر نر، جو وار کرنے والا ہو، جو دشمنوں پر لپٹنے والا ہو۔ اذان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب مولا علی شیر خدا کو اپنے گود میں لیا تو اپنے لعاب دہن کو مولا علی شیر خدا کے منہ میں ڈال دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک لوگوں
بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں وہ بھی کان کھول کر سن لے. جب ان کا بچہ گھر پر پیدا ہو, ہاسپٹل میں پیدا ہو, جب اپنے بچے کے منہ میں جب اپنا لعاب تھوک ڈالیں گے تو ڈاکٹر اسے 2 تماچا لگائے گا, تھپڑ رسید کرے گا, چپل مارے گا کہ تم نے سارا بیکٹیریا سارا وائرس اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیا, بچے کے جان کو خطرے میں ڈال دیا. لیکن قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا تھوک میں اور مصطفیٰ جان وسلم کا تھوک میں انتر ہے, کیونکہ حضور کا لعاب دہن جو ہے جو آب رحمت ہوتا ہے اور ہمارا جو لعاب ہے آب رحمت نہیں ہوتا ہے. حضور نے مولا علی شیر خدا کے اپنے لعاب دہن کو ان کے منہ میں ڈال دیا اور سارے علم کو سمندر کو ان کے سینے میں ڈال دیا. خزانہ ملت اسلامیہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش ہمارے نبی اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ چچا جان جب ہمارے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا, میں اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں تھا. جب ہمارے دادا بھی انتقال فرما گئے تو آپ نے میری پرورش کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے علی کی میں پرورش کر کے اپنے پرورش کا فدیہ ادا کروں, بدلہ وصول ہو جائے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ علی کی پرورش میں کروں. خزانہ ملت اسلامیہ علی وہ علی ہے جن کی پرورش مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہو رہی ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر ہے, وہ آپ کا مقام ہے, وہ آپ کا عظمت ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں آپ جاتے ہیں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے تمام صحابہ جنگ بدر میں گئے تھے, جتنے صحابہ نے مل کر دشمنوں کو قتل کیا تھا, وہ اتنا مل کر مولا علی شیر خدا نے تنہا دشمنوں کو قتل کیا. جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خیبر ہو, میں اب بتا رہا ہوں, کل میں نے بتایا تھا کہ مولا علی شیر خدا کو جب حضور نے اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے جب خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے تمام بتوں کو مولا علی شیر خدا نے توڑا تھا, تو مولا علی شیر خدا نے کیا دیکھا تھا؟ مولا علی شیر خدا جب زمین پر اترتے اپنے کام کو تمام کر کے, حضور نے فرمایا اے علی تم نے کیا دیکھا؟ مولا علی شیر خدا فرماتے کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کے کاندھے پر تھا اٹھانے والے آپ تھے, لیکن جب زمین پر اتر رہا تھا تو اترنے والا نظر نہیں آیا, اور یا رسول اللہ جب میں آپ کے کاندھے پر تھا ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سر جو ہے عرش اعظم سے ٹکرا رہے, اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. حضور نے فرمایا علی کاندھے پر چڑھانے والے مصطفیٰ تھے اور کاندھے سے اتارنے والے جبریل امی تھے. خزانہ ملت اسلامیہ جب جنگ احد ہوئی اس میں ایک افواہ اڑا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دشمنوں نے قتل کیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ خبر ہوئی, تو میں نے سوچا کہ جب حضور ہی دنیا میں نہ رہے تو ہمیں جینے کا کوئی مقصد نہیں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار کو لے کر دشمنوں پر میں بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑا, اور کئی دشمنوں کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا. اتنا میں لڑتے رہا, اتنا لڑتے رہا, میں نے سوچ لیا جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. جب ہمارے نبی دنیا میں نہ رہے تو ہمارے جینے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں سوچ رہا تھا ایسے بھی مرنا ویسے بھی مرنا ہے. میں دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا, کاٹتے کاٹتے میرے بازو تھک گئے, میرے بازو میں جو ہے لرزہ ہو گیا, میرے بازو کانپنے لگے, مجھے تھکاوٹ محسوس ہونے لگی. جب میں گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا میں نے دیکھا ایک سفید کپڑا پہنا ہوا نورانی چہرے والا
बुजुर्ग आते हैं और मुझे घोड़े से उठाकर मुझे जमीन से उठाकर घोड़े पर बैठा देते हैं। जब मुझे पता चला कि हुजूर के बारे में यह अफवाह हल्ला उड़ाया गया है, हुजूर शहीद नहीं हुए बल्कि हमारे नबी जिंदा हैं। बोले सुभान अल्लाह। सिर्फ कुछ जंग में, जंगे उहद में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। हुजूर की बारगाह में मौला अली शेर खुदा अपने सारे मामलात को पेश करते हैं। हुजूर ने फरमाया, अली जब तुम्हारे बाजू थक गए, तुम्हारा जिस्म कमजोर हो गया और जब घोड़े से तुम गिरने ही वाले थे, जो सफेद कपड़े में आया था, नूरानी चेहरा वाला, और तुम्हें उठाकर घोड़े पर बैठा दिया, वो कौन था तुम्हें पता है? मौला अली शेर खुदा फरमाया, या रसूल अल्लाह कौन था? हुजूर ने फरमाया, जो तुम्हारा आगे पीछे चल रहा था और जो घोड़े पर सवार सफेद कपड़े में आया था, नूरानी चेहरे वाला, कोई और नहीं बल्कि सिदरतुल मुंतहा, फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अमी थे। बोले सुभान अल्लाह। अब समझ में आ गया ना मौला अली शेर खुदा की क्या शान है। अब जरा गौर करें, अज़ान मिलत इस्लामिया जब जंग खंदक हुई, अब देखिए मुसलमानों ने मुशरिकीन को जंगे बदर में हराया, जंगे उहद हराया, जंगे खैबर में हराया। जंगे खैबर थोड़ा मुख्तसर से मैं झलकियां दिखा दूं जंगे खैबर की। जब जंगे खैबर में गए मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो किले का दरवाजा तो इतना भारी था, इतना मजबूत था, इतना बड़ा था कि कई लोग भी मिलकर उस दरवाजे को उठा नहीं सकते थे, खोल नहीं सकते थे। मौला अली शेर खुदा ने अपने एक बाजू से तमाम उस दरवाजे को, खैबर के किले को उठा दिया और जितने फौजी थे आपके पुष्ट पर सवार होकर किले के अंदर दाखिल हो गए। अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं। मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को उठाकर बोले, या अली या अली या अली या अली या अली या अली। बोले, या हसन या हुसैन, 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 मदद या अली, या मदद या अली। अज़ान मिलत इस्लामिया यकीनन हमारी महफिल में मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला को रूहानी तौर पर मदद आएगी। जो भी शख्स मौला अली शेर खुदा से मदद मांगेगा और मुश्किल कुशाई के लिए पुकारेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला अली नजब शरीफ से हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इस्लामिया हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो जिक्र शहादत मौला हुसैन में बैठे। अब जरा गौर कीजिएगा, जंगे खंदक, जब जंगे बदर, जंगे हुनैन, जंगे खैबर, जंगे बदर में उन मुश्रिकीन को जो मक्का के थे, जो गिरदो नवाह के थे, मुसलमानों ने हरा दिया। उन मुश्रिकीन ने क्या किया? यहूदियों को मिला लिया, ईसाइयों को मिला लिया और खुद एक तरफ होकर अब एक बारगी मक्का पर हमला करने की प्लानिंग बनाया कि हम मक्का पर हमला करेंगे। उनको उलझा दिया, भगा दिया, यहूदियों को, ईसाइयों को। फिर एक साथ होकर अब मक्के पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। एक मुखबिर जो बॉर्डर पर सरहद पर जो सहाबा करम निगरानी कर रहे थे, उन्होंने आकर खबर दिया कि या रसूल अल्लाह, मुशरिकों ने यहूदियों को मिला लिया है, ईसाइयों को मिला लिया है और वो मदीना शरीफ पर हमला करना चाहते हैं। तो एक बात याद रखें, सहाबा कराम से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लिया करते थे किसी भी मामले। हालांकि हुजूर मालिक मुख्तार हैं, दोनों जहां के रहमतुल आलमीन है, हुजूर के सदके में सारी कायनात को बनाया गया, लेकिन हुजूर फिर भी अपने चाहने वालों से, अपने मानने वालों से, अपने सहाबियों से, अपने गुलामों से मशवरा लिया करते थे। हुजूर ने फरमाया, वो सहाबा इस जंग को किस तरीके से लड़ा जाएगा? तो सलमान फारसी जो फारस के रहने वाले थे, उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हमारे मुल्क में जो जंग होती है तो हम लोग अपने शहर से बाहर नहीं निकलते, मैदान में नहीं जाते, बल्कि अपने शहर में होते हैं और शहर के चारों तरफ गड्ढा खोद देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं या उसमें आग लगा देते हैं।
फिर दुश्मन हमारे शहर में दाखिल नहीं होते हैं, इस तरीके से हम जंग लड़ते हैं। हुजूर ने सलमान फारसी के मशवरे को कबूल फरमाया, बोले सुभान अल्लाह। और सलमान उस फारसी है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया सलमान फारसी हमारे अहले बैत में से है, बोले सुभान अल्लाह, हमारे घर वालों में से है। अब जरा गौर कीजिएगा, जब मदीना के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ गड्ढा खोद दिया गया और सारे सहाबा मदीना शरीफ में हैं और मुशरिकीन यहूद और ईसाई मदीना शरीफ के चारों तरफ है, क्योंकि उस गड्ढे को छलांग लगाकर, गड्ढे को पार करके शहर में दाखिल होना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए मुशरिकीन ने सोचा कि जब इनका खाना पीना खत्म हो जाएगा तो बाजार आएंगे खाना खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए, हम इन पर हमला करेंगे। और मदीना शरीफ के मुसलमानों ने सोचा जब उन मुशरिकीन का खाना खत्म हो जाएगा खुद यहां से चले जाएंगे। अब देखें यहां मुसलमान सोच रहे हैं कि जब उनका खाना खत्म हो जाएगा चले जाएंगे, मुशरिकीन सोच रहे हैं कि जब मुसलमानों का खाना खत्म हो जाएगा वो खाना लेने के लिए आएंगे, हम उन पर हमला करेंगे। इसी तरीके से कई दिन गुजर हो गया, कई दिन गुजर गया, लेकिन कोई भी मदीना शरीफ से बाहर नहीं निकल रहा है, ना वो लोग मदीना शरीफ में दाखिल हो रहे थे। लेकिन उन्हीं में से एक बहुत बड़ा पहलवान आया था जिसका नाम है अमर बिन अब्द ऊद। ये बहुत बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा पहलवान था, इतना ताकतवर था कि 1000 सिपाहियों को अकेला देख लेता था, मार देता था। और जब घोड़े पर सवार होता था ना, इतना हट्ठा कट्टा था कि उसके पैर जो है जमीन से लकड़ाते थे, जमीन से घिसते थे। और उसका घोड़ा जो था ना वो उतना ही मजबूत ताकतवर था, फरबा था। उसने देखा कोई भी मुसलमान शहर से बाहर नहीं निकल रहा है, उसने खुद ही जो गड्ढा खोदा गया था, खंदक खोदा गया था, उस खंदक को उबूर करके, पार करके शहर में दाखिल हो गया। और उसने तंज निगाहों से, तंज कलिमात ताना देने लगा, उल्टी सीधी बातें कहने लगा। लेकिन कोई भी सहाबी अपने घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि सारे सहाबा जानते थे कि बहुत ही हैकल है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही बहादुर है, अकेला 1000 सिपाहियों को देख लेता है। इसलिए कोई सहाबी अपने घरों से बाहर नहीं निकले। फिर वो तंज करके ताना देकर फिर चला गया। फिर दूसरे दिन आया, जो जंग में ताने दिए जाते, उल्टी सीधे बातें कही जाती है, फिर आकर उल्टी सीधी बातें कर भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगा। लेकिन फिर भी कोई सहाबी बाहर न निकले, क्योंकि सारे सहाबा जानते थे बहुत ताकतवर है। फिर तीसरे दिन क्या किया, वो चूड़ी ले लिया, उस जो औरतों के कंगन जेवर होते हैं पहनने के लिए, वो ले लिया। लेने के बाद आया और कहने लगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातब होकर कहा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना है कि आपके चाहने वाले, आपके गुलाम, आपके सिपाही, आपके सहाबी बहुत बहादुर है। उन्होंने बदर में कई लोगों को कत्ल कर दिया, जंग बदर को जीत लिया, जंग खैबर को जीत लिया, जंग उहद को जीत लिया, जंग हुनैन को जीत लिया। लेकिन अब उनको क्या हो गया है, जब वो जीत नहीं सकते, जब वार नहीं कर सकते, मैं उनके लिए चूड़ियां लेकर आया हूँ, कंगन लेकर आया हूँ। और उल्टी सीधी गाली भी देने लगा। अब जरा गौर कीजिएगा, जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, वहीं पर बगल में मौला अली शेर खुदा भी बैठे हुए थे। जब उसने चूड़ियों की बात कही, कंगन हाथों में पहनले, चूड़ियां पहन ले, ये औरत है, मर्द नहीं है। मौला अली शेर खुदा उठ जाते, खड़े हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, अली क्या इरादा है? अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह, उसने ताना दिया है, हम मर्द है, औरत नहीं है, हम चूड़ी पहनने वाले नहीं है, हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, हम उनसे जंग कर सकते हैं। हुजूर ने फरमाया, अली बैठ जाओ, बहुत बहादुर है, बहुत ताकतवर है, 1000 सिपाहियों का अकेला देख लेता है। अली के कांधे पर हुजूर ने जोर दिया, अली। फिर उसने कहा, जब जंग के लिए नहीं निकलते, लो मैं तेरे लिए चूड़ियां लेकर आया हूं, चूड़ियां पहन लो, अपने घरों में बैठे रहो। उल्टी सीधी गालियां देने लगा।
फिर मौला अली शेर खुदा खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अली क्या इरादा है? अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह जंग का इरादा है, मैं उसे कत्ल करूंगा, आप हुक्म फरमाए मैं उसका सर कलम करके आपके पास ले आऊं, आपके कदमों में रख दूं। अच्छा एक बात बतलाएं, मौला अली बहुत बहादुर थे। आज तक मौला अली ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी जंग में हारा नहीं है, बोले सुभान अल्लाह। और मौला अली शेर खुदा ने कभी भी जब जंग में गए तो किसी दुश्मन के पीठ में वार नहीं किया, जब भी किया है सामने से किया है। अब मौला अली की जुल्फ़िकार हैदर करार जिस दुश्मन के ऊपर पड़ गई बेगर उसका सर कलम के जमीन पर नहीं आती। और मौला अली ने कभी भी जब भी आपके मुकाबले में जो भी आया जिंदा बच कर नहीं गया। हाँ, हालांकि मौला अली शेर खुदा ने खुद से छोड़ दिया। जैसे कि एक वाकया एक रवायत मिलती है कि एक जंग में मौला अली शेर खुदा गए थे तो आप उसके सीने पर सवार हो गए तो उसने आपके चेहरे पर तो मौला अली शेर खुदा ने उसे छोड़ दिया। और अली ने फरमाया कि जब तुम मेरे मुकाबले में आए थे तो इस्लाम का दुश्मन थे, जब मैंने तेरे सीने पर सवार हो गया और अनकरीब में तुझे कत्ल करने वाला था तुम इस्लाम का दुश्मन थे, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पर थूक दिया तो इस्लाम का बल्कि तुम मेरा दुश्मन हो गया। और अली अपने दुश्मन को माफ कर देता है, बोले सुभान अल्लाह। अली कभी भी अपने दुश्मन को मारता नहीं है, अली ने उसे छोड़ दिया। अज़ान मिलत इस्लामिया तो हुजूर जानते थे कि अली बहादुर है, अली ताकतवर है, अली जिसको चाहे कत्ल कर दे, अली जिसको चाहे जेल कर दे। लेकिन अली को बार बार हुजूर इसलिए बैठा रहे थे ताकि अली के अंदर जलाल पैदा हो, बोले सुभान अल्लाह। अली के अंदर गुस्सा पैदा हो, अली के अंदर रौब पैदा हो और जंग जीतने का जो है उनके अंदर कुव्वत पैदा हो जाए। फिर दूसरी मर्तबा हुजूर ने बैठा दिया, फिर तीसरी मर्तबा अली खड़े हुए। हुजूर ने फरमाया अली क्या इरादा है? अली फरमाते कि या रसूल अल्लाह जंग का इरादा है। हुजूर ने फरमाया है अली बहुत बहादुर है, ताकतवर है, 1000 सिपाहियों का अकेला जंग लेता है, अली को जलाल है। अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह जब वो अमर बिन अब्द ऊद 1000 सिपाहियों को देख लेते इतना बहादुर है तो मेरा भी नाम अली बिन अबी तालिब है, मेरा भी नाम अली बिन अबी तालिब है, मैं भी बहादुर हूँ। हैदर करार का जुल्फ़िकार जब लहराता है हवाओं में दुश्मन का सर कलम किए बगैर आप अपने जमीन पर नहीं आता है। तो हुजूर ने फरमाया अली जाओ, अब तुम जंग जीत सकते हो, तुम उसे मार सकते हो, तुम उसे खाक में मिला सकते हो, उसकी लाशों को तड़पा सकते हो। हुजूर ने अपना इमामा शरीफ अली के सर पर बांधा, बोले सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपना तलवार अली के हाथों में दिया और जब अली हजरत अली घोड़े पर सवार हो, जरा देखे अली की शान, अली की शान को मुलाहाजा फरमाए। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं फजीलत के तौर पर कसीर तादाद में जितनी हदीसें मौला अली शेर खुदा के शान में आई है उतनी हदीसें किसी सहाबी की शान में नहीं आई। जब हजरत अली घोड़े पर सवार हो रहे थे हुजूर ने अपने जाने मुबारक को आगे बढ़ाया और हुजूर के जाने मुबारक पर पैर रखकर मौला अली शेर खुदा घोड़े पर सवार हुए, बोले सुभान अल्लाह। इस शान से जंग में जाते हैं, उस जो है अमर के मुकाबले में जाते हैं। जब मौला अली शेर खुदा उसके मुकाबले में जाते हैं उसने कहा ओ बच्चे, क्योंकि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु थोड़ा नाट्य करते थे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं थे, नाट्य करते, मोटा ताजा थे, है ना। और जो पहलवान आया था वो लंबा चौड़ा था, अब बहुत मोटा था। अब जरा गौर करें, जब घोड़े पर सवार होता था तो उसका पैर जमीन से लगता था, अब कितना बड़ा होगा, बहुत बहादुर था। तो उसने देखा मौला अली शेर खुदा को, उसने कहा बच्चे तुम वापस चले जाओ, मैं बच्चों से जंग नहीं लड़ता। तो मौला अली शेर खुदा ने फरमाया जंग लड़ने के लिए जाओ।
मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसने कहा, ए बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? अली ने फरमाया कि मेरा नाम अली बिन अबी तालिब है। क्या नाम है? अली बिन अबी तालिब है। उसने कहा, वो तो हमारा चहीता दोस्त था। अबू तालिब मेरा चहीता दोस्त था, जिगरी साथी था और बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत मुखलिस था। अब तुम मेरे दोस्त के बेटे हो तो अब मैं तुझसे जंग नहीं कर सकता, मैं तुझे कत्ल नहीं कर सकता, जाओ किसी दूसरे को भेजो। अली ने फरमाया कि मैं ही जंग करूंगा, किसी और को नहीं भेजूंगा। अली ने फरमाया कि मैंने सुना है कि तुमसे तो 2 शर्त रखी जाती है, उन शर्तों में से एक शर्त को कबूल करता है, तो मेरी 2 शर्त है, उनमें से एक कबूल कर ले। उसने कहा, क्या शर्त है? मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि पहली शर्त ये है कि तू इस्लाम कबूल कर ले। क्या कहा अली ने? इस्लाम कबूल कर। उसने कहा, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। और दूसरी शर्त यह है कि अली ने फरमाया कि तू यहाँ से वापस चला जा, जंग छोड़ दे। अली ने फरमाया, जब इस्लाम नहीं कबूल करेगा तो मैदान जंग से वापस चला जा अपने साथियों को लेकर। उसने कहा कि मैं इस जंग में गया, उस जंग से मैं वापस नहीं आया। तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब वापस नहीं जाओगे तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो उसने वार करना शुरू कर दिया। मौरिख लिखते हैं कि मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमर का वार अपने ढाल पर रोकते रहे, यहाँ तक कि आपका ढाल टूट भी गया। जब उसने 7 वार कर चुका तो मौला अली शेर खुदा फरमाते कि तुमने अब तो वार कर लिया, अब मैं वार करता हूँ, अब तुम हमारे वार को रोक ले। जो ही मौला अली शेर खुदा ने एक ही वार किया था, वो वार को रोक न सका, उसकी गर्दन तड़प कर जो है जमीन पर नीचे उतर, कट कर जमीन पर गिर गई। जब उतना बड़ा पहलवान मारा गया, जो आए थे मुशरिकीन, यहूदी, ईसाई, सारे लोग भाग गए जंग छोड़कर। अज़ान मिलत इस्लामिया, ये मौला अली शेर खुदा की शान है। अज़ान मिलत इस्लामिया, आपने उनकी बहादुरी को सुनिया। अब जरा उनकी सादगी को समाप्त फरमाएं। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी अबू बकर सिद्दीक के पास बैठते थे तो अबू बकर सिद्दीक तख्त पर होते थे और मौला अली शेर खुदा जमीन पर होते थे। जब उमर फारूक का दौर आया तो उमर फारूक तख्त पर होते थे, मौला अली शेर खुदा जमीन पर होते थे। फिर जब उस्मान गनी का दौर आया तो मौला अली शेर खुदा जमीन पर होते थे, उस्मान गनी तख्त पर होते थे। जब अली का दौर आया, जब इनके लिए तख्त लगाया गया, तो उस वक्त भी मौला अली शेर खुदा तख्त पर नहीं बैठे बल्कि जमीन पर बैठे। सहाबा ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन मौला अली, ये तख्त आपके लिए है, ये शान और शौकत आपके लिए है, ये तख्त आपके लिए लगाए गए हैं, आप तख्त पर बैठे। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, ए हुजूर के चाहने वालों, जो ऊंचाई पर बैठता है गिर जाता है, और जो जमीन पर बैठता है कभी गिरता नहीं। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इतने बड़े खलीफा होकर मदीना शरीफ का खलीफा है, लेकिन आप जो कपड़ा पहनते थे, आज अगर बादशाह बन जाए, वजीर आजम बन जाए, कितने से कितनी कपड़ा पहनता है। लेकिन जरा गौर करो, अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा की खिलाफत को, आपकी शान को, आपकी सादगी को। मौला अली शेर खुदा कई तहबंद का कपड़ा, चादर अपने जिस्म पर ओढ़े हुए हैं, अंदर कोई कमीज नहीं पहने होते, सिर्फ बदन को ढांकने के लिए एक चादर कई पेवंद लगा हुआ। जो आप तहबंद यानी लुंगी पहने थे, लुंगी को एक कपड़े को डोरी से बांधे हुए थे, इस शान से चल रहे थे। सहाबा ने फरमाया, ए अली, आप इतने बड़े खलीफा हो, आप मदीना शहर के इतना बड़ा खलीफा बने हो, ए अली
आप अच्छा कीमती कपड़ा पहना करो। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मैं ऐसे कपड़े इसलिए पहनता हूँ कि जब मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ तो मुझे कपड़ों पर ध्यान नहीं आता है बल्कि नमाज में ध्यान आता है। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला कूफा की सरजमीन पर अब बैठे हुए हैं, सहाबा करम के बीच में तख्त लगा हुआ है, तो सारे सहाबा जमीन पर बैठे हुए हैं। मौला अली शेर खुदा भी उन सहाबा के साथ जमीन पर बैठे हुए। बोले सुभान अल्लाह। सहाबा ने फरमाया अली आप तख्त पर बैठ जाएं। मौला अली शेर खुदा फरमाते कि नहीं, जब मुझे तख्त मिला, जब कुर्सी मिला, तो मैं अपने दोस्तों को भूल जाऊं? मैं दोस्तों को नहीं भूल सकता। जहां हमारे दोस्त बैठेंगे वहां भी आमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा भी बैठेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अली की शान है। आपने देखा कि हज़रत मौला अली शेर खुदा की जो शहीद करने वाला शख्स था इब्न मुलजिम, आपने उसको भी माफ़ कर दिया था। मौला अली शेर खुदा ने अपने दुश्मनों को हमेशा माफ़ किया है। मौला अली शेर खुदा की ये शान है, आपकी ये अज़मत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये महफिल बहुत ही बरकत वाली महफिल है और अज़मत वाली महफिल है, नूरानी महफिल है, नेमत वाली महफिल है, रहमत वाली महफिल है। इस महफिल में जो शख्स शरीक होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों का सदका अता फरमाता है। एक बात याद रखें, जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, ये हमारा कोई इसमें कमाल नहीं है। जो हम महफिल सजाए हुए हैं, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। जो हम इसमें बैठे हुए, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक अता फरमाया है कि हम नमाज भी अदा करते हैं और हम जो है इमाम हुसैन की महफिल भी सजाते हैं। जी, अज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसको रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाता है, जिस पर अल्लाह की खुसूसी रहमत होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को नेकी करने की तौफीक अता फरमाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली ने एक शख्स से कहा, ये लोगों, जो हुजूर से मिलने जाएगा, हुजूर से एक मर्तबा मिलेगा, अली से 2 मर्तबा मिलेगा। शख्स ने जाकर इतराज किया हुजूर की बारगाह में। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, अली कहते हैं कि जो हुजूर से मिलने जाएगा, हुजूर से 1 मर्तबा मिलेगा और अली से 2 मर्तबा मिलेगा। हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया, अली ने ठीक कहा, क्योंकि अली के लिए मैंने कहा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो जो दरवाजे से दाखिल होगा, 1 मर्तबा दाखिल होते वक्त मिलेगा और जब वापस लौटेगा तो उस वक्त मिलेगा, 2 मर्तबा मिलेगा। अज़ान मिल्लत इस्लामिया मौला अली की शान है। जब मुश्किल के वक्त, परेशानी के वक्त, गम के वक्त जो शख्स अली का नाम ले लेता है, अल्लाह तबारक व तआला नामे अली के सदक़े में उसका बेड़ा पार कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस महफिल की बरकत, रहमत अता फरमाए और हम लोगों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं सब बताऊं, सब कुछ का सौदा कर देना, लेकिन ईमान का सौदा न करना। उलमाए कराम फरमाते हैं कि दुनिया की सारी नेमतों को एक पलड़े में रख दो और अपने ईमान को एक पलड़े में रख दो, फिर भी सारी दुनिया की दौलतें तुम्हारे ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। ईमान बहुत कीमती चीज़ है, ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान और माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत अता फरमाए। मौला अली के सदक़े तुफ़ैल में आज की महफिल को मौला करीम अपनी प्यारी बरगाह में कबूल और मक़बूल अता फरमाए। हम सब की बख्शिश मग़फ़िरत अता फरमाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद